ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا سے اموات اور نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان میں کورونا آج مزید 40 افراد کی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 29,917 ہو گئی۔ کورونا سے متاثر 1,495 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ ملک بھر میں 51,677 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,870 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 5.55% رہی۔ NCOC کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,94,293 ہو گئی، جبکہ 13,93,517 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے بلیدہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن DGISPR کے مطابق فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد کیش میں ہونے والی حالیہ تخریب کاری میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف متنازع بیان، FIA نے سینئر صحافی محسن بیگ کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج ہونے کے صرف 30 منٹ کے بعد ہی محسن بیگ کے گھر پر چھاپہ مارا گیا۔ مزاحمت پر ایک اہلکار زخمی ہوا، جس پر تھانہ مارگلہ میں سینئر صحافی کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ بھی درج ہوا۔ پیشی پر انسداد دہشت گردی عدالت نے محسن بیگ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بیٹا حمزہ بیگ بھی پولیس کی حراست میں آ گیا، آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف بیان کیوں دیا؟ FIA نے سینئر صحافی محسن بیگ کو گرفتار کر لیا۔ مراد سعید کی درخواست پر FIA نے محسن بیگ کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپہ مارا۔ صحافی کی گن نکال کر مزاحمت، فائرنگ بھی کی، ایک اہلکار زخمی ہوا۔ FIA ٹیم محسن بیگ کو تھانے لے گئی اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا۔ تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں محسن بیگ کے بیٹے کو بھی نامزد کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی پر محسن بیگ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس کسٹڈی میں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ دیکھ لیں، میرا چہرہ دیکھ لیں، میری 2 ربس توڑی ہیں انہوں نے۔ عدالت نے محسن بیگ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ FIA سینئر صحافی کے گھر دوسری بار چھاپہ مار کر کمپیوٹر سسٹم، USB اور دیگر دستاویزات بھی قبضے میں لے لیں۔ FIA کے مطابق لاہور میں تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ سینئر صحافی کا بیٹا حمزہ بیگ بھی پولیس کے پکڑ میں آ گیا، آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب PFUJ نے محسن بیگ کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے سینئر صحافی محسن بیگ کے گھر پر FIA کا چھاپہ غیر قانونی قرار دیتے ہوئے IG اسلام آباد کو کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج کے تحریری حکم نامے کے مطابق SHO تھانہ مارگلہ FIA لاہور کے کسی آفیشل کو پیش کر سکے اور نہ ہی متعلقہ ریکارڈ پیش کیا۔ حقائق کے مطابق لاہور سے اسلام آباد کے لیے کوئی چھاپہ مار ٹیم روانہ نہیں ہوئی۔ چھاپہ مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپہ مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ مقدمہ 9 بجے درج ہوا اور 9:30 بجے FIA نے بغیر کسی سرچ وارنٹ کے محسن بیگ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ 2:15 بجے تک SHO نے محسن بیگ کو غیر قانونی حراست میں رکھا۔ پولیس محسن بیگ کا ریکارڈ بیان کرنے کے لیے قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ خاتون اول بشرا بی بی کی تصدیق پر پارلیمانی سیکرٹری MNA عالیہ حمزہ نے مریم نواز کی گرفتاری کے لیے FIA میں درخواست دے دی۔ تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ نے خاتون اول کے خلاف میڈیا پروپیگنڈے سے متعلق پیمرا میں بھی درخواست جمع کرا دی۔ کہتی ہیں کہ خاتون اول پاکستان کا وقار ہیں، منصب کے مطابق پروٹوکول ملنا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاتون اول کی کردار کشی کرنے والے صابر ہاشمی کی حمایت کر کے مریم نواز نے اقبال جرم کیا۔ FIA مریم نواز کو گرفتار کرے۔ مریم نواز اتری ہیں جو گندی سیاست یہ کر رہی ہیں، جو غلیظ اور نازیبا الفاظ والا ٹویٹر ٹرینڈ ان کی سرپرستی میں چلایا گیا ہے، اور جو بندہ گرفتار ہوا ہے اس کی سرپرستی کا جس طرح سے انہوں نے اقبال جرم کیا ہے، ان کی ساری ٹویٹس ہم لگا کر FIA کے پاس بھی یہ کمپلینٹ لے کر جا رہے ہیں کہ اصل مجرمہ کو جو ہر ایسی چیز کے پیچھے ہے، نون لیگ کی گندی سیاست کو بے نقاب کیا جائے۔ مسلم لیگ کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کر لیں، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آپ کے جرائم کی فہرست میں اپنے مخالفین سے انتقام لینا ہی نہیں، FIA جیسے قومی اور ریاستی اداروں کو اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ حساب تو دینا ہوگا۔
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। मीडिया से हिस्ब इख्तिलाफ को चैलेंज किया कि वो पहले तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे करके दिखाएं। उन्होंने दावा किया है कि अपोजिशन के बाद अरकान तो वोट डालने के लिए हुकूमत के इशारे का इंतज़ार करते हैं। बाज़ अपोजिशन अरकान का रिमोट हुकूमत के पास है, हम अपोजिशन का बटन दबाएं तो ऑन हो जाते हैं और बटन दबाकर हम इन्हें म्यूट कर देते हैं। पहले लारी करवा लें, कोस्टर शोस्टर करवा लें, ਉਹਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਊਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो इसलिए पहले घर में मंजी थले डांग फेर लो। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूल में से आवाज़ नहीं आएगी। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के सदर काजिम खान ने सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और अहल खाना को हरासा करने की शदीद मसम्मत की है। CPNE के सदर ने अपने बयान में कहा है कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार जमहूरी और आइनी हुकूक है, लेकिन इसका इस्तेमाल सहाफ़ती इक़दार और असूलों के मुताबिक किया जाना चाहिए। सहाफ़ती पेशावराना ज़िम्मेदारियों का तकाजा है कि इस आइनी हक़ को इस्तेमाल करते हुए ज़ातियात और इखलाकियात से मुबर्रा होकर इशूज़ पर गैर मुतासिबाना और गैर जानिबदाराना इजहार किया जाए। उन्होंने कहा है कि एक सीनियर सहाफ़ी को बिना किसी वारंट के इस तरह से गिरफ्तार करना और अहल खाना को हरासा करना, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करना इंतहाई मज़म्मती अमल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम मुल्क की गुजारिशात दुनिया नहीं सुनती। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए ख़ारजा पॉलिसी तश्कील दी है। मौजूदा हालात में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ खड़े हैं। दुबई में पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इस्तेमाल करने का फैसला किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर असल तब्दीली लेकर आए हैं। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत और सिनर्जी ग्रुप के चेयरमैन इमरान चौधरी ने किया। Community centers and the problems community centers have, and how do we fix that, and temporary suspension of visas. ये challenges हैं और इन challenges को इंशाल्लाह हम address करेंगे. And I recognized that 70,000 Pakistanis were repatriated from UAE, and you continue. हुकूमत में रहना है या नहीं, फैसला चौधरी परवेज़ इलाही करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पार्लिमानी इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। इजलास में मौजूद रहनुमाओं ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और होशरुबा महंगाई आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। चंद अरकान का अपोजिशन जमातों से इख्तलाफात की तर्ज पर इशारा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI एक पेश पर नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन हुकूमती रहनुमा आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने में किसी तरह से भी पीछे नहीं है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि कीमत बढ़ गई है तो क्या हुआ, आवाम इस्तेमाल कम कर दें। शहबाज गिल कहते हैं कि पेट पर पत्थर बांध लें। बाज़ रहनुमा माजी में भी आवाम को मुफ्त मशवरे देते रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये इजाफा ज़ालिमाना इक़दाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि 40 रुपये लीटर पेट्रोल देने के दावेदार ने एक दिन में 12 रुपये लीटर महंगा कर दिया। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, प्याज, सब्जियां, दालें भी महंगी हो गईं। हमदा शहबाज ने कहा कि हुकूमत हर 15 दिन के बाद आवाम की जेब पर डाका मारती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आवाम का मुआशी कत्ल-ए-आम करार दे दिया, जबकि जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 रोज़ा मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबा पंजाब की सिविल इंतज़ामिया और अमन अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को आम आदमी को फौरी तौर पर मौसर खिदमात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम करने की हिदायत कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ भी मौसर इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने भी मुलाकात की। वेल्डन उस्मान बुज़दार। इमरान खान पंजाब में तरक्याती मंसूबों की बेहतरीन पेशरफ्त पर खुश, वजीर आला को शाबाश भी दी।
वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में सूबा पंजाब की सिविल इंतजामी और अमनो अमान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की शर्त पसंदों, जखीरा अंदोजों और कब्जा माफिया के खिलाफ मौसर इकदामात की हिदायत। उस्मान बुज़दार के हमरा वजीर बल्दियात महमूद रशीद भी वज़ीर आज़म से मिले। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली और अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की निचली सतह पर कारकुनों को मुतहरक करने और अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के दरमियान मुलाकात में सूबे में नए अस्पतालों की तामीर से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमरान खान ने सूबाई वज़ीर को सेहत कार्ड के फवायद और इसके मौसर इस्तेमाल के बारे में अवाम में भरपूर शऊर उजागर करने की हिदायत की। मुल्क पर नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत हैं। सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी पर हमला किया गया। गुरबत, महंगाई, बेरोज़गारी का तूफ़ान है। बिलावल भुट्टो सरदारी की तब्दीली सरकार पर लफ्ज़ी कोलापारी। कराची में तलबा की तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध की तरह मुल्क भर में तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा किया। कहा कि सियासत करना तलबा का हक है। हम पे ये नालायक, नाअहल, नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत है। सिलेक्टेड हुकूमत जिसकी वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ है, जिनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला किया गया है। इस मुल्क के नौजवान अब जिद्दोजहद करने के लिए तैयार है। इस मुल्क के नौजवानों के खिलाफ सबसे बड़ा जो जुल्म किया गया वो आपकी आवाज दबाने की कोशिश की। सियासत करना आपका हक है। आवामी मार्च जो 27 फरवरी को, वहाँ हमारा पहला डिमांड यही होगा कि जैसे सिंध ने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया, वैसे पूरा मुल्क को स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला। पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास के दौरान पंजाब में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, पाकपतन, टोबा टेक्सिंग, खुशाब, सियालकोट, गुजराला और इसके अलावा हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलुम और अटक में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में काबीना कमेटी बराए CPEC का इजलास आज तलब कर दिया गया है। इजलास में 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी पोटेंशियल की एस्टिमेट का भी जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में CPEC बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन टावर की समरी पेश की जाएगी। थाकोट, तारायकोट, शारा कराक्रम की रीअलाइनमेंट की भी समरी एजेंडे में शामिल है, जबकि CPEC खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के लिए यूटिलिटीज़ पर पेशरफ भी किया जाएगा। अमरीकी डेवलपमेंट और डिप्लोमेट विलियम मैकानुले ने मकान मुल्तान में दरबार हज़रत मूसा पाक में हासिल थी और उनका कहना था कि पाक अमरीका ताउन ताल्लुकात 75 सालों पर मुहित है और आगे भी चलते रहेंगे। अमरीकी कौंसलेट जनरल कौंसल विलियम मैकानुले ने पाकिस्तानी लिबास में दरबार हज़रत मूसा पाक पर चादर चढ़ाई और हासिल थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान पहनावा शलवार कमीज़ पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुल्तान के लोग मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बेहतरी और मेहमान नवाजी और तराई देने पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी डिप्लोमेट का मज़ीद कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए पुरउम्मीद हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं और वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि कोयटा में सब्सल रोड कोयटा गुज़िश्ता कई साल से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि इस रोड से गुजरकर ना किसी तरह से अजाब से कम नहीं है। कहते हैं कि वज़ीर आला के दौरे से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर कोयटा के मसरूफ तरीन शारा सब्जल रोड के हैं। हर वक्त नालियों का गंदा पानी बहने या कड़ा रहने की वजह से यहाँ से गुजरना अब किसी एहजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है तोसी के नाम पर हर सड़क को तोड़ दिया गया। हम लोग इस रास्ते पर सवारी नहीं लेते, बेजार है। हम लोग उधर जेंट रोड से जाते हैं, बेजार हो गए इस रोड से। अच्छा, यही से पड़े हुए सब्जल, इस पर गौर करो खुदा के रास्ते। कई लोग मोटरसाइकिल वाले गिरे, लेडीज नालियों में गिरा है,
कई मोबाइलें इधर ज़ाया हो चुकी है जो अभी भी नालियों में पड़े हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। 4 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ। शहरी कहते हैं वज़ीर आला के अहकामात पर भी खातिर ख्वाह अमल दरामद नहीं हुआ। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। तंगवानी में पैनाडोल टैबलेट नायाब हो गए। खांसी, नज़ला, जुकाम और बुखार के लिए मुफीद पैनाडोल टैबलेट तंगवानी में किसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद है तो महंगे दामों में मिल रही है। बस ये जानते हैं सुभान अल्लाह मलिक से इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैसे ही मौसम बदला तो पैनाडोल समेत दीगर जो अद्वियात है वो नायाब हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जैसे ही मौसम बदला है तो खांसी, बुखार, ज़ुकाम के जो के लिए जो पैनाडोल टेबलेट है वो नायाब हो चुकी हैं। कहीं पर भी अगर मेडिकल पर पैनाडोल दस्तियाब है तो वो लोग महंगे दामों दे रहे हैं। हम ज़िले इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि खुदारा इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन लोगों ने ज़िले इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके हमें रिलीफ दिया जाए। ज़िला बदीन के तहसील तलहार के गांव आतमदास में सरकारी स्कूल ना होने पर एक नौजवान ने 100 बच्चों की तालीम का बेड़ा उठा लिया। दूसरे वालिदैन सरकारी स्कूल ना होने पर सरापा एहतजाज है। मज़ीद जानते हैं ताहिर सम्मू से। मैं इस वक्त ज़िले बदीन के तहसील तलार के नवाई गांव आतमदास कोली में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो गांव है 250 घरों पे मुश्तमिल है, लेकिन इस गांव में कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। बुनियादी सहूलत जो है तालीम होती है, तालीम के ज़ेवर से जो ये गांव के रिहायशी हैं वो महरूम है। हमारी बात हुई है गांव के रहवासियों से, उन्होंने कहा है कि तलार का जो नौजवान है हमारे गांव पे रोज़ाना पढ़ाने आता है, लेकिन सरकारी सतह पे कोई स्कूल नहीं है। इनका मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, वज़ीर तालीम से कि गांव आतमदास कोली में सरकारी सतह पे स्कूल दिया जाए ताकि 150 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इल्म हासिल कर सकें। जी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी आला तालीमी इदारों में तालीम का मयार बेहतर बनाने और रिसर्च को फ़रोग़ देने के लिए लेक्चर्स, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरबियत शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 4000 से ज़ायद कॉलेजेस के असातिज़ा को तरबियत दी गई है। पेशावर से जमील खान की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हायर एजुकेशन एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से सरकारी कॉलेजेस के लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। असातिज़ा ने इस इक़दाम को तहक़ीक़ी मुताले के लिए लाजमी करार दिया। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कि कैसे हम कॉन्फिडेंटली, कि स्टूडेंट्स के लेवल तक तो ठीक है हम कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन जब हम अपने लेवल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल है क्योंकि हमने इसमें बहुत सी स्किल्स सीखी हैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट। एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर तस्बीहुल्लाह ने कहा हार्ट ने लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरक्की के लिए अब तक कामयाबी के साथ 30 दिन और 40 दिन दौरानिया के 102 तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए, जिसमें 4116 कॉलेज असातिज़ा को तरबियत दी गई। हमारे कॉलेज के टीचर्स के लिए ये ज़रूरी करार पाया कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाने के लिए उनको ये ट्रेनिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो ये 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। हार्ट के हुक्काम ने वाज़ेह किया तहकीकी मुताले के बगैर पढ़ाने और सिखाने का अमल नामुकम्मल है। तरबियत मुकम्मल करने वाले कॉलेजेस के असातिज़ा में महकमे आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खुरम जलील के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। ठट्टा में साइंस सरकार के तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। मकली के करीब वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लॉन्ग शोरो की 5 साल से बंदिश के खिलाफ दर्जनों तलबा और तालिबात मकली प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते रहे। मज़ीद देखते हैं ताज़ा गुल की इस रिपोर्ट में। ठट्टा सिंध में स्कूल बंदिश के खिलाफ तलबा और तालबात साइंस सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तलबा और तालबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मकली के नवाही गांव सदीक शोरो में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लॉन्ग शोरो गुज़िश्ता 5 साल से बंद पड़ा है और मुकर्ररा टीचर घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। स्कूल में फर्नीचर तक की सहूलत मौजूद नहीं है। 5 साल से उस्ताद नहीं आ रहा है, स्कूल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हमारे बच्चों की तालीम जो मुसलसल
मुतासर हो रही है। हम वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर साईं सरकार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद गुल के साथ ताज़ा गुल, न्यू न्यूज़ ठट्ठा। और खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्रोस्टार के इश्तराक से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें फैमिलीज, एथलीट्स, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शानदार तकरीब का बाकायदा आगाज़ CEO ब्लू हिल्स एंड कंट्री फार्म्स चौधरी नईम एजाज, डायरेक्टर ओवरसीज एंड ब्लू वर्ल्ड इकनॉमिक जोन अरशद अवान, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहराम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी नदीम प्राचा समेत दीगर ने एक साथ फीता काट कर किया। और एक रोज़ा इवेंट में फुटबॉल, मैराथन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स के पुरजोश मुकाबले हुए। CEO ब्लू हिल्स एंड कंट्री फार्म्स चौधरी नईम एजाज ने कहा है कि 300 केनाल पर मुहित ब्लू वर्ल्ड वाटर थीम पार्क भी इसी सिलसिले की कड़ी है। डायरेक्टर ओवरसीज एंड ब्लू वर्ल्ड इकनॉमिक जोन अरशद अवान कहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर ब्लू वर्ल्ड सिटी के शानदार लाइफस्टाइल का बुनियादी फीचर है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और स्टेडियम्स भी तामीर किए जा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेने वाले बच्चों और नौजवानों और एथलीट्स की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स और इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, एडिटर इन चीफ गुलाम अकबर और वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो मुख्तलिफ अखबारात से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और सीनियर कॉलम नवीस गुलाम अकबर रोजनामा अल अखबार और रोजनामा कोहिस्तान के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं। मरहूम ने नेशनल ट्रिब्यून, रोजनामा एक्सप्रेस और दीगर कौमी अखबारात में भी खिदमत अंजाम दी। वो रोजनामा मशरक में कॉलम भी लिखते रहे। अल अखबार में उनके कॉलम आज की बात को कारीन ने हमेशा बेहद पसंद किया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुलाम अकबर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि गुलाम अकबर शोबा सहाफत में अपनी अलग पहचान और मकाम रखते थे। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है। कराची के इलाके गुलशन इमामात सेक्टर 4 में फायरिंग से एक शख्स शमबहक हो गया। 32 साला सैयद मोहम्मद अदनान की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब सचल पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि साथी फरार हो गया। राजनपुर में अंदरून कच्चा रुझान शाहवाली और हरन के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में महकमे वापडा और पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों से 11 बस्तियों की 150 कुंडा कनेक्शन, 100 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स उखाड़ लिए गए। बिजली चोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर दिया गया। आता मोहम्मद से इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। जी आता मोहम्मद। जी बिल्कुल शबी, जो है राजनपुर पुलिस और महकमा वापडा का जो है बिजली चोरों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस वक्त रुझान कच्चा और हरण और शाहवाली समेत जो है उनके दीगर इलाकों में जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, जबकि यहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाके हैं खासकर रुझान, शाहवाली और हरण हाजीपुर में जो 11 बस्ती हैं वहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया है और जिसमें 150 कुंडा कनेक्शन और 10 गैर कानूनी ट्रांसफर जो है वो वापडा ने जो अपने कब्जे में ले लिया। और जबकि वापडा के मुताबिक ये बताया गया कि इससे हुकूमती खजाने को 2 करोड़ और 89 लाख का जो नुकसान हुआ है, जबकि पुलिस की जानिब से बिजली चोरी में मुलविस 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी यहाँ पर DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल का कहना था कि बिजली चोरी के खिलाफ जो महकमा वापडा का जो है हर मुमकिन जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आता मोहम्मद हमें ज्वाइन करने का।